Like in simple terms, I always say this to myself, let's not take the salary, but let's take the profit. Success is always rented, and rent is due every day. Okay, that's great. Success is always rented. You cannot be once successful and lifetime successful. There are people who have been once successful and then they sit on the side, then they come up as a big blunder and more unsuccessful people. How are you guys? This is Yash Doshi from the Uncommon Mind Talks. आज का एपिसोड डिफरेंट है क्योंकि आज मेरे आईटी मेंटोर बैठा है जिन्होंने मुझे भी बहुत नॉलेज दी है आईटी के रिलेटेड एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल नॉलेज मिलती है यहाँ से. हमारी जो भी कन्वर्सेशन होती है तभी बहुत ज़्यादा डीप होती है और नॉलेजेबल होती है. तो थैंक यू सो मच हिमांशु सर फॉर बीइंग हियर फॉर दिस पॉडकास्ट. Thank you so much for giving me this opportunity to having an exposure to the YouTube and podcast, which is a big sensation today. In classrooms, we have been teaching since long, but now giving advices over the public platforms is a different thing. And I'm really glad I'm able to do this with the help of you and your team. थैंक यू सो मच सर. सर जब भी हमारी कन्वर्सेशन होती है मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, एनलाइटमेंट फील होता है और डीप नॉलेज हम करते हैं. तो आज सोच रहे हैं कि हम यही नॉलेज थोड़ा पॉडकास्ट में भी डालें. I love to do that. Helping one and helping hundreds is a different thing. Yeah. So let's do that. सो सर फर्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे एक पर्सनल मेरा क्वेश्चन है कि जब भी मैं आपसे बात करता हूँ या कन्वर्सेशन करता हूँ सो एक क्लियरिटी वाला फॉर्म और एक पीसफुल माइंड वाला फॉर्म भी है ना आप पे दिखता है. आप कभी भी कोई भी बात करते हो कोई भी लेक्चर ले रहे हो तो आप बहुत पीसफुल और बहुत क्लियर माइंडसेट से आप लेक्चर लेते हो. तो वो जो लेक्चर आप ले रहे हो या वो माइंडसेट है वो आपने कैसे बिल्डअप किया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बाई बॉर्न है, बट आई थिंक आपने उस पर वर्क किया है और आप उस पर डेवलप अपना वो जो स्किल है वो डेवलप कर रहे हो. तो वो कैसे आपने किया? I guess you are right. It is not a birth thing. Like, I didn't have it from the day one. But while conducting lectures, हमने देखा if I am a bit confused and I'm not in like very sentimental form of like clear vision, और उस clear vision को build करने के लिए you should have a plan for next 50 lectures. कि आज आप जो कर रहे हो वो 50 lectures बस किस तरह से relate होगा. So if someone wants to have that quality of being at peace and calm and still be the best, he should have a bigger vision, longer vision, and then only it will come out. So yes, to do that we need to have plan of 50 lectures बाद हमें कैसे उसको लिंक करना है. So a long vision is the only way and that has helped me to come up to this stage. सर आपने 2012 में विप्रो कंपनी के साथ अपना करियर स्टार्ट किया, डेवलप करना स्टार्ट किया एंड आज एज ए आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट लेके एज एन एंटरप्रेन्योर हो. तो एक विप्रो कंपनी से अब तक का एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो लाइफ है अब तक का जो जर्नी है वो आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? क्योंकि ये जो मतलब एम्प्लॉय से डायरेक्ट अचानक से एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट आ गया तो वो क्या था एक्चुअली? I'll say that अचानक से कभी कुछ नहीं आता है. It's always in your inside कि आप क्या करना चाहते हो. I always wanted to be a businessman or an entrepreneur. Like in simple terms, I always say this to myself, let's not take the salary, but let's take the profit. Okay. And I started my career in 2008. People know me from 2012 because Wipro was a big push to my career. And 2008 when I started is the year of crash. It is known as the black year in the history of Indian economics. It was the crash year. People having jobs were losing their jobs. And now I was coming out as a graduate and I wanted to have a job. So it was a big deal already. So I started my career in 2008 end, somewhere like 2009, and then for 3 years I strived, 9 to 10, 10 to 11. In the end of the 11, I got a switch to Wipro. So it has been a very big journey, almost like if you ask me when did my IT journey started, so today I am 32, my IT journey started at 16. So it's like 16 years of journey completed. It's like that. So one can go according to the wish, but yes,
Entrepreneur cannot be like come up in a overnight कि कल से मैं entrepreneur हूँ. It was something that the child in me always wanted to be a businessman. Was only interested in profits. But as we say, you cannot get everything every time whenever you want. You have to Patience रखना जरूरी है. You have to wait for the right moment to come to get that thing. Exactly. And I waited for a period of around 9 years, because 3 years before, 7 years I waited. I worked as an employee for different companies. Post 7 years, I started on the 8th year of my career, I started my own organization. तो सर ये एंटरप्रेन्योर वाली लाइफ कब से स्टार्ट हो गई, मतलब एज ए प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप? 2015 I have been only working on the things I like, and I would like to see them in my future. I don't work on anything that is not a part of my future. As if you might be known that I do not teach anything related to basics or computing, accounting or that, because I do not see myself accounting tutor in future. So even though owning a computer institute and training institutes, I do not teach anything related to accounts, even though there is a lot of scope in accounts. But I do not see that as my future, so I don't do that. So ये सर ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो लाइफ है वो स्टार्टिंग में कैसी थी और अब कैसी है? Very tough. अभी भी tough है. So it's never going to be easy. If you want to achieve big things, you need to work hard and you need to be striving till you die. If you think that once for a year आपने मेहनत कर ली, you have worked hard, you have achieved a level, and it's over, it's not so. Success is always rented, and rent is due every day. Okay, that's great. Success is always rented. You cannot be once successful and lifetime successful. There are people who have been once successful and then they sit on the side, then they come up as a big blunder and more unsuccessful people. और ये रोज की वॉर है, ये रोज इसमें करना ही है सर. आपको ये समझना, it is a war that you love to do. If you are not doing this war, you should be feeling like I am not living. तभी आप entrepreneurship में आओ. If you think that it is a day's task or it is a week's task or month's task or year's task, और उसके बाद it is going to be blossom, flowers and everywhere, I'll be the most rich. No, it is not going to be. You are supposed to work hard every day. You are supposed to strive every day, and you should be enjoying this struggle. Then only you will be an entrepreneur. Entrepreneur, मेरे हिसाब से entrepreneur is the one who solves a problem that everybody was facing, but nobody was even thinking of solving it, and was just take it for granted. And then the entrepreneur comes, solves that problem, and makes money out of solving that problem. That's what an entrepreneur is, because he thinks out of the box. He solves the problem we were not even knowing that would be a solution for. So that's what an entrepreneur is. Example, recently people know Zoom crowds. Zoom meetings. Who would have imagined Zoom would be such a big fire in the entire world? Zoom meetings, the person who designed it, even he didn't imagine it. Exactly. But he knew that there was a problem that remote people are not able to communicate easily, and hence he developed a tool which that remote people can control each other's computers and help each other to understand things more conveniently. So ये कोरोना वायरस एक्सप्लोजन के पहले ही बन गया था Zoom? Yes, Zoom is not a company that has just started in 2019 or somewhere. It is a company and it is a tool that was developed in 2010, 11, 12 and 13. So it is constantly used by the Zoom customers. There are many such tools. Office meetings, TeamViewer, Google Meetings, Google Meetings. Google Meet तो फिर भी recently आया, like 2018 end में उसने ज़्यादा flourishment लिया. But yes, Zoom Cloud is nowhere an outcome of COVID-19 problems. It was already there in the world, and then this problem became more big, and it was required by the entire world. This problem was always there. If you work for IT companies, as I have worked for, we know that having your customers' reaction directly live is a big achievement. Because our customers might be sitting somewhere in the Europe or Singapore or some other German countries. So now there's a big problem that voice cannot be only a way to understand one's expression and emotions. So when you talk to our customers on live videos, we actually understand that what he actually wants, because most of the time customers themselves are not able to pitch in the right technical words, because they are not from the technical team, they are just customers. So to do that, we also required video meetings, and initially we used to take these meetings from Skype and all that, but Skype was good to a particular extent where we don't want to share something, only audio video. Zoom gave you an option of showing presentations, showing a screen, everything. So Skype was the 0 level and Zoom is of level 10, and hence Zoom became more prominent. People didn't choose Skype because they cannot share screens on Skype. Exactly.
Or else video calls was always possible for 100 people also. You can use Skype for 100 people, people will join. But there would be no sharing of screens or sharing of their scenarios or PDFs or documents. That cannot be done with Skype. So that's how it is. So sir, just now you told that you are an entrepreneur of your institute. तो सर ऐसे कैसे कब हुआ रहेगा कि आप बहुत बार फेल भी हुए, नीचे भी, जैसे हम लोग ने बोला कि इट्स ए वॉर ऑफ डेज ऑल्सो, कि पर डे के हिसाब से भी वॉर होता है, तो ऐसे बहुत सारे टाइम आई रहेगी जब आप नीचे भी गिर गए रहेंगे. तो वो very recent, in very recent COVID-19, right? COVID-19 forced all the teachers to come on the online platform and teach, right? Now, for the 15 years of time before this COVID-19 year, I am a 15 years old tutor जो 15 साल से पढ़ा रहा है. I always teach people on the basis of their facial expression and looking at the screen that what they have written and trying to understand that what level of understanding my student or my child has already been reached, and उसके बाद उसके आगे की problem हम solve करते हैं. And I think expression is the thing that आपको पता चलता है हाँ इसको आया कि नहीं आया, इसको आया कि नहीं आया, क्योंकि उसकी कोड देखनी पड़ती है, उसका एक्सप्रेशन देखना पड़ता है कि उसने कितना समझा है. और जब अब कोविड-19 में ये हो गया कि if I'm taking a class of 20 students, तो 20 स्टूडेंट्स को एक के बाद एक स्क्रीन शेयर करने बोलना, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस रीड करना इम्पॉसिबल है. Until unless you have a big lab setup of 100 computers, जहाँ पे आपको सभी का स्क्रीन अलग दिखे, सभी का फेस अलग दिखे, and you are already trained to look at 100 screens all together. So which is not possible. Yes. My biggest problem was, even though I was having the great amount of knowledge, but I most of the time quitted saying for most of the lectures कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि I was not prepared for this online platform pattern. So had you continued your institute lectures on Zoom? Yes, we did. We did it on Zoom. We did it on Google Meet. Then at last, what I decided, I used to take 4 laptops while sitting for a lecture. I used to go to my institute, lock it from inside, and I used to sit on a 4 laptops, 2 laptops showing me the faces and 2 laptops showing me the screens. And then I used to conduct lectures. I think that's really hectic, right? It's really hectic because if you have, when you have 4 laptops, Zoom cloud in the same area, the mic of all the 4 syncs. And it creates noise, the speakers need to be muted, and every student is doing something and something else, because for them it is fun staying at home and still having the attendance. And for us it is like a big challenge, teaching them with good quality education, because it is not important that we taught, it is important that our student learned. When you are a real teacher, it is important that your student learned. If he is not learning, it is better you upload a video on the YouTube, na? He just needs to see it. Why you need to worry about who's learning or who's not learning? So when you are a good teacher, you are concerned about your students learning. And even students were having great problems because their professor, who used to be in front of them and able to understand the problem more easily, now they need to dictate their understanding, which is not always good, because getting right words in the mouth is also a big task. You cannot always get the right words in the mouth to explain your scenario or the understanding you have received. So it was a big challenge for me that how to come or overcome this particular problem. But you conquered this? Yeah, we had different strategies. Like we used to keep one-to-one meets. Okay, where if we find that particular student is not in the pace and really facing a challenge, one-to-one meets were still allowed in the open hours in the lockdown also. So what we used to do, we used to meet in that one-to-one meet, and we used to understand and we used to help him. And slowly and steadily now students have still developed with both the patterns. Now it's like they are okay with offline also and they are okay with online also. Okay. ऐसा. So it's like बहुत आसान है ऐसे तो देखने जाओ तो जो पहली बार करेगा उनके लिए आसान है, लेकिन जो ऑलरेडी किसी दूसरे पैटर्न से कर रहे होते हैं उनके लिए कुछ नया अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. और वही तो एंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है कि वो एक नए प्रॉब्लम को फेस करे और उसको ओवरकम करे. तो हाँ, जैसे कि तुमने मुझे कहा कि आप डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, हर रोज कुछ ना कुछ एक नया प्रॉब्लम आता ही रहता है और कुछ ना कुछ नया. और आई एम IT ट्यूटर, तो लैंग्वेजेस कीप ऑन कमिंग एवरी डे. देयर इज सम न्यू इन्वेंशन, देयर इज सम न्यू थिंग, and it is my prime duty to learn that particular thing so that my students can get benefit. अगर मुझे ही नहीं आता तो मैं उनको कैसे सिखाऊंगा? जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है ना
कि पहले खुद करो फिर अपने शिष्य से उम्मीद करो कि वो करे। Exactly. तो अगर मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा कुछ नया सीखे तो मुझे पहले ये प्रूव करना होगा खुद को कि मैं भी कुछ नया सीख सकता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। आई थिंक यहाँ पे टीचर की वो जो महिमा बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा काम आती है कि बिकॉज अगर दैट्स व्हाट आई सेड ना, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर को अपने इन स्ट्रगल्स से प्यार होना चाहिए कि मजा आया, उसका ये नहीं होना चाहिए यार थक गया। उसका एंड ऑफ द डे ये आउटकम होना चाहिए कि मजा आया, आज काम करके मजा आया, कुछ नया किया, एक नई प्रॉब्लम को समझा, उसको सुलझाया और मजा आया। सो एंटरप्रेन्योर शुड थिंक पॉजिटिवली। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव, फेलियर्स को भी आप वेलकम करो। आपको चाहे एक्सपीरियंस खराब मिल रहा है या अच्छा मिल रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो या फेलियर हो रहे हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप कुछ सीख रहे हो। फेलियर्स भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं और सक्सेसफुल होना भी कुछ ना कुछ सिखाती है। बट अगर आप सीख नहीं रहे हो तो दोनों में से कोई कुछ भी नहीं सिखाएगा। An entrepreneur is about learning everyday problems and solving them in a way that you can rip money out of it. आपको उसमें से पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए। हम डेली में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, राइट? लेकिन क्या हम हर प्रॉब्लम के लिए पे करेंगे? नहीं। लेकिन हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी हमारी लाइफ के लिए जिसके हम जरूर पे करते हैं। एग्जैक्टली, राइट? आज कोई भी फोन खरीदने से पहले आज की डेट में एक चीज जरूर चेक करता है कि कैमरा क्वालिटी कैसी है। एग्जैक्टली। क्यों? बिकॉज वो कैमरा ही होता है जो एक हिडन फेस को बाहर निकालता है, आपकी इनर ब्यूटी को दिखाता है कि आपके फेस पे जो मार्क्स है वो छोड़ दो, आपकी सोल दिखाता है वो। एग्जैक्टली, राइट? कि आप अच्छे कैसे दिख रहे हो, राइट? बिकॉज हम डेली में पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो अगर हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये पिक्चर पूरी अलग होती है, हमारी फेस पूरी अलग होती, और वही फेस वो निकाल के दिखाता है। एग्जैक्टली। एंड हेंस बिफोर बाइंग अ फोन मोस्ट ऑफ द पीपल आल्सो लुक एट द कैमरा क्वालिटी। यहाँ पे काम भी आता है सर। सर इस हिसाब से सर्टिफिकेट जो यूजुअली कॉलेज में मिलता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल्स? सर्टिफिकेट मतलब वो जेरोक्स जेरोक्स बोल सकते हैं, बट क्योंकि कॉलेज यही करती है। हाँ। सेम सब्जेक्ट के नाम होते हैं, हर बच्चे को अलग अलग मार्क्स लिख के दे देती है। उसे हम मेरी टर्म्स में आई कॉल इट फोटोकॉपीज, जो कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करती है इन टर्म्स ऑफ योर फीस। ठीक है, तो उससे तो बेटर मैं बोलूंगा 110% स्किल है। और मतलब आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली, गो एंड चेक द रियल वर्ल्ड। आपको ऐसे हजारों एग्जांपल मिल जाएंगे जिनके पास ये फोटोकॉपीज नहीं है, बट दे आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स यू विल एवर मीट, बिकॉज उनके पास वो नॉलेज है। बहुत सारे हैं, लाइक जैक मा, एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, एवरीबॉडी, बिल गेट्स, they do not have this big pile of certificates with them, but what they had is the mindset कि हमें करना है और हम इसे सीख सीख के करेंगे। आज लोग एलन मस्क इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द media because he has overcome as the biggest billionaire and the richest person in the world. Exactly. But do you know what he used to do 20 years back from today? Go and have a look at that. Efforts कितने थे? Efforts कितने थे? ड्राइविंग इंडिया में कार लेना इतना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप यूएस या यूके जैसी कंट्रीज में हो तो हैविंग अ कार इज अ मस्ट बिकॉज इट इज मोर अफोर्डेबल। इंडिया में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल है, वहां पे आपको हैविंग योर ओन कार इज मोर अफोर्डेबल। और उसमें भी उस पर्सन की हालत ये थी कि टू गेट हिज कार फिक्स्ड ही कैन नॉट बाय न्यू पार्ट्स, तो ही यूज्ड टू गो एंड बाय सेकंड हैंड पार्ट्स फ्रॉम स्टोर्स एंड गेट हिज कार फिक्स्ड। तो जब सोचो कि अगर आज आपकी डेट में मोबाइल लेना एक कॉमन बात है, अगर आपके मोबाइल का कोई ईयरफोन बिगड़ जाता है तो आप नया अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए आप कोई सेकेंड हैंड ईयरफोन डील करते हो, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाएगा जी। सेम सिनेरियो उसके लिए था, वहां पे कार एक बेसिक नेसेसिटी थी और वो अपने कार के न्यू पार्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो सेकेंड हैंड पार्ट से उसे खुद फिक्स करता था। तो अगर यही चीज हम देखें तो पीपल डोंट लुक एट द हार्डवर्क वन डज। मुकेश अंबानी, मोटा भाई, इंडिया के, राइट, जिसे लोग बिलियनरी कहते हैं, he was learning in Oxford, having one of the most richest background, ठीक है। One fine day he says कि मेरे को मेरे फादर का कॉल आया, इंडिया आजा, जामनगर में प्लांट लगाना है, and I left my studies half over there and I came back to जामनगर to work। अगर वो उस टाइम पे ये बोलते मैं अभी क्यों काम करूँ, मुझसे इतना हार्डवर्क क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाई खत्म करूंगा, उसके बाद मेरा करियर शुरू करूंगा, तो क्या आज हम उसे वो मोटा भाई कहते? नहीं,
बिकॉज जब धीरूभाई अंबानी जी गए तो उनके पीछे दोनों भाई को सब कुछ इक्वल मिला था और मेरे हिसाब से तो फेयर शेयर ज्यादा अनिल को मिला था बिकॉज वॉज द यंगर। उसको सारे के सारे प्लस वाले जोन्स मिले थे, क्योंकि अगर आप देखोगे आज के डेट में मुकेश अंबानी का जो जोन है जियो, वहां से उसका बहुत ज्यादा कैश फ्लो होता है, लेकिन उसे सेल्यूलर नेटवर्क्स विरासत में नहीं मिले थे, वो मिले थे अनिल अंबानी को। रिलायंस मोबाइल जो धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया, एग्जैक्टली। अब एक ऑलरेडी शुरू हुआ वेंचर आपको मिल चुका है और आप उसे नहीं चला पाए, और एक दूसरा है जिसने जीरो से उसी टाइप का एक वेंचर, क्योंकि उसे लगा उस डोमेन में पैसा है तो उसने एक जीरो से वो वेंचर शुरू किया और उसको फ्लरिश किया। तो ये दो माइंडसेट है कि एक ने हार्डवर्क वेलकम किया, चाहे जो भी हो जाए ठीक है। उस सोचो मुकेश ये भी तो हो सकता था नहीं, आई विल फाइट इन द कोर्ट एंड आई विल गेट द नेटवर्क जोन फ्रॉम हिम, बट उसने वैसा कुछ नहीं किया। उसने क्या सोचा, मैं अपना बना लूंगा, तुझे ये चाहिए तू रख, आई विल मेक माई ओन जोन, राइट। तो ये है कि आपको हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहना है, बट स्किल्स के साथ, अगर क्योंकि स्किल्स तो मस्ट है ना। इफ आई से आई वांट टू टुमारो आई वांट टू से दैट आई वांट टू बी अ नेटवर्क एक्सपर्ट, ठीक है, बट आई डोंट इवन नो हाउ टू होल्ड अ स्क्रू ड्राइवर, हाउ द हेल कैसे करोगे। तो स्किल एक ऐसी चीज है ना जिसको आप जैसे एग्जांपल, एवरीबॉडी वांट्स टू बी एन एथिकल हैकर, बट नोबडी नोस दैट टू बी एन एथिकल हैकर and to call yourself an ethical hacker is already a Bloomberg। मतलब एक रियल एथिकल हैकर कभी खुद को बोलते हुए नहीं जाएगा मैं एथिकल हैकर हूं, मैं एथिकल हैकर हूं, मैं एथिकल हैकर हूं। ही वर्क्स इन साइलेंस। दुनिया को लगता है ये नॉर्मल इंसान है, बट वो हैकर होता है, एथिकल हैकर। कंपनीज उसको बुलाती है, टेस्ट करो मेरा नेटवर्क क्या है, बिकॉज एथिकल वर्ड ही बनता है कि लीगली अच्छे से। कंपनी उसको सामने से बुलाती है, और यहाँ पे लोग एथिकल हैकर क्यों बनना है, बिकॉज बीइंग हैकर इज अ स्वैग, ठीक है, एंड बीइंग हैकर इज अ स्वैग, और ये स्वैग को हर कोई कैरी करना चाहता है, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसको एथिकल हैकर बोल के भेजती है। क्यों? क्योंकि चोरी करना तो नहीं सिखाया जा सकता ना। जो सीख रहा होता है उसका माइंडसेट होता है ही वांट्स टू बी अ हैकर, बट अगर कोई इंस्टीट्यूट बोले मैं दुनिया को चोरी करना सिखाता हूँ तो पुलिस से लेके हर कोई इसकी बैंड बजा देगा। इसलिए क्या कहते हैं, एथिकली चोरी करना सिखाते। मैं कहता हूँ डोंट रन बिहाइंड एथिकल हैकिंग, रन बिहाइंड नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, रन बिहाइंड नेटवर्क एक्सपर्ट, रन बिहाइंड द गार्ड दैट द वर्ल्ड नीड्स। एवरीबody can be a thief, but it takes too much of efforts to be the guard, because आपको नहीं पता चोर कहाँ से आएगा। I will always be more, लोग कहते हैं कि टेररिस्ट लोग कहीं से भी अटैक कर देते। थिंक ऑफ द इंडियन आर्मी, यू बी द इंडियन आर्मी नेटवर्क एक्सपर्ट ना। इंडियन आर्मी को पता भी नहीं होता कहाँ से कौन कब अटैक करेगा, किस टाइप का टेररिस्ट आएगा, लेकिन फिर भी वो उनसे डील करते हैं और उनसे जीतते हैं इन एनी कंडीशन, राइट। तो एथिकल हैकर्स या हैकर्स वही होते हैं जो इन टेररिस्ट की तरह होते हैं। कब कहाँ से हमला करेंगे नहीं पता, जस्ट लाइक योर आर्मी यू नीड टू बी रेडी। कहीं से भी हमला हो, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, तू आ जा, आई विल हैंडल इट। तो कोई भी क्यों ना हो, आई विल हैंडल इट। तो वो होता है नेटवर्क एक्सपर्ट। तो दैट्स मोर प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट टू बी अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट और टू बी द नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। सो सर, अभी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो अभी हमारी आ रही है, तो उनके लिए आईटी क्या इफेक्ट्स लाएगी? सर बहुत इम्पैक्ट लाएगा, बिकॉज अब आईटी ऐसा है कि अगर हमने नेक्स्ट जनरेशन को पिकअप नहीं करा आईटी तो उनका हार्डवर्क बढ़ेगा। टुडे कार्स आर टर्निंग स्मार्ट, बाइक्स विल टर्न स्मार्ट, ठीक है, कार्स आर टर्निंग स्मार्ट, बाइक्स विल टर्न स्मार्ट, मशीन्स विल टर्न स्मार्ट। आई सी अ विजन जहाँ पे घर में सब कुछ आप बैठे बैठे कमांड दोगे, ठीक है, बस आपको एक्सरसाइज बाकी खुद करनी होगी, बिकॉज इन बैठे बैठे कमांड देने की वजह से जो एक्स्ट्रा फैट गेन होगा उसको लूज करने के लिए अलग से एक मशीन यूज करनी और उसके लिए मशीन यूज करनी है। हाँ, उसके लिए भी मशीन। आई सीरियसली डोंट फील बैड कि मशीन्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमसे पहले लोगों ने मशीन नहीं यूज किया, और हमने जब भी मशीन यूज की हमारा फायदा हुआ। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे आईटी को लेके पॉजिटिव रहे और आईटी में अपना स्कोप देखे, बिकॉज आई सी इट इज द ओनली वे। Have you heard about any person getting more than his degree? No. I have heard of ample of such people. कि उसकी डिग्री सिर्फ बैचलर्स की है, लेकिन फिर भी सैलरी 25 lakhs per annum, 40 lakhs per annum, क्योंकि उसकी स्किल वो हो गई है। आप किसी सीए को ये नहीं कह सकते, फेस नहीं करा सकते, कि या किसी सीएस से फेस नहीं करा सकते कि he is now earning 1 crore per annum, बट एक नेटवर्क एक्सपर्ट से आप ये फेस करा सकते हो कि सिनेरियो बेस की वजह से उसका सैलरी बढ़ता ही जाएगा। सर 12th स्टैंडर्ड के बाद यूजुअली
लोग सोचते हैं कि हम अभी ये फील्ड में हम करियर चूज करेंगे, यहाँ पे ये चूज करेंगे। बट अब वो चेंज हो चुका है, जो मैं हमेशा से कहता था, बच्चों को अपना करियर राइट फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड चूज करना चाहिए, राइट। लेकिन होता ये है कि 10th में हम बहुत यंग है, हम कैसे चूज करें, राइट। ठीक है, हम एक्चुअली करियर स्टार्टिंग एज भी अब 21 से 24 जाने वाली है। लोग अब 24 से पहले फर्स्ट जॉब पिक नहीं करेंगे, बिकॉज एक टाइम था जब 10th पास आउट होना जरूरी था, फिर 12th पास आउट आया, फिर डिग्रीज आई, अब पोस्ट ग्रेजुएशन। सो अब ये हो गया कि लोग 24 के बाद ही जॉब करेंगे। और अगर आप अपने 17 पे या 18 पे आप अपने आप को चूज कर लेते हो कि आपको किस फील्ड पे जाना है, तो आपके पास 6 साल होते हैं उस फील्ड को समझने के। बट सर आईटी क्या अगर आपको आईटी ऑप्शंस देता है? बहुत सारे ऑप्शंस है। आप समझो आईटी में इतने ऑप्शंस है जिसकी कोई लिमिट नहीं। आईटी में प्रिंटिंग होती है, अगर आप अच्छे हार्डवेयर वाले हो, यू थिंक यू नो मशीन्स वेल एंड इंक्स वेल एंड कलर्स वेल, तो आप प्रिंटिंग वगैरह की लाइन चूज करते हो। यहाँ पे आप प्रिंटर्स क्रिएट करोगे, स्कैनर्स क्रिएट करोगे। आप हार्डवेयर में जाना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, आप नेटवर्क्स में जाना चाहते हो, ये 3 मीडिया होती है। हार्डवेयर के बाद आप हार्डवेयर में किस टाइप के हार्डवेयर में जाना चाहते हो आप, क्योंकि हमारे लोगों को लगता है कि आईटी में सिर्फ टेक्निकलिटीज रहती है, नहीं, आईटी में भी सेल्स होता है। प्रिंटर बेचना भी तो है, हाँ, प्रिंटर बेचना भी तो है। आईटी में भी सेल्स होता है, सॉफ्टवेयर बना है उसको बेचना भी तो है। एंड आई थिंक आईटी में एक चीज है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा ग्रो, बहुत डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा है, अगर आपको वेरी सून यू विल सी दैट ऑल द मार्केटिंग जॉब्स विल हैव वेरी फिक्स क्राइटेरिया कि यू शुड नो ऑल द डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। चाहे आपको फेसबुक एड टूल्स हो, जो भी हो, सारे टूल्स आपको आने ही चाहिए, मे वॉट एवर हैपन। ओके, तो ये डिजिटल मार्केट और अच्छा भी है ना, लाइक वी से दैट वी शुड सेव ट्रीज, राइट, वी से दैट वी शुड सेव ट्रीज। सो इफ यू प्रिंट बैनर्स यू एक्चुअली कटिंग ट्रीज इनडायरेक्टली, तो उसकी जगह पे आप डिजिटल पोस्टर बना रहे हो, एग्जैक्टली, तो यू आर सेविंग नेचर, राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आई सी टुमारो हैविंग बिग बिल बोर्ड्स एवरीवेयर, बड़े एलसीडीज, टीवीज। एक टीवी, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 20 years old and I wanted to buy a bigger TV and I dreamt of it. I went to a showroom and he told me 2 lakh rupees for a 40-inch TV. और आज 43-inch TV comes in 15,000. राइट, तो सोचो 43 इंच, अगर मुझे कल को कहीं पे बैनर लगाना है, राइट, और मुझे पता है कि वो बैनर का मुझे साल भर का रेंट पे करना है, तो उससे तो अच्छा है मैं वहां पे एक बड़ा 100 इंच का टीवी लगा दूं। मेरा पेपर भी बचेगा और मेरा मार्केटिंग भी और बेटर होगा, एग्जैक्टली, बिकॉज टीवी के साथ मेरे पास ऑडियो का ऑप्शन आ जाता है। बैनर में ऑडियो नहीं होता, मैं वीडियो प्ले कर सकता हूँ, बैनर में वीडियो नहीं चलेगा। इससे बहुत सारी चीजें जो चेंज होगी बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और ये चेंज आते रहने वाला है। सो सर नॉर्मली जिसको आईटी में आना है, तो वो एक प्राइम स्टेप्स होते हैं जो यूजुअली लोगों को आने चाहिए, तो उस हिसाब से वो अच्छे से करियर आईटी में बिल्ड कर सकते हैं। तो वो प्राइम स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो आपके पास वो डिजायर होनी चाहिए कि आईटी में ही रहना है, बिकॉज आईटी में रहना उतना भी आसान नहीं जितना लोगों को लगता है। ठीक, बिकॉज जैसे अकाउंट्स है, आपने उसमें डेबिट क्रेडिट कर लिया, सीख लिया, और टैली में अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर ली, तो आप थोड़ी बहुत ढंग की जॉब पे लैंड कर लोगे। लेकिन आईटी में ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप थोड़ी बहुत ढंग की जॉब पे लैंड कर लोगे। आपको अच्छा साउंड नॉलेज चाहिएगा। अब हर किसी को आईटी में सिर्फ एक्सपर्टीज चाहिए। Nobody welcomes a rookie or one with half or very minor knowledge. Everyone wants a well-flourished, knowledgeable person to work for them. Because उतने fear भी तो है ना, आज कोई वेबसाइट बना रहे, उसमें पेमेंट गेटवे ले रहे, सिक्योरिटी का पार्ट पता है कि नहीं पता? Because अगर सिक्योरिटी नहीं है तो जितना सेल्स होगा उससे ज्यादा नुकसान होगा, और गवर्नमेंट के लफड़ाएंगे वो अलग। तो वहाँ पे होता है ना ये सिक्योरिटी परफेक्ट होता है, तो वही पार्ट है। तो किसी को भी अगर आईटी में अपना करियर बनाना है तो सबसे प्राइमरी उसको फोकस करना चाहिए लॉजिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये दो अगर किसी के सॉर्टेड है, उसके बाद उसको जाना चाहिए यूटिलाइजेशन पे, जैसे हम कहते हैं। आपको सबसे ज्यादा पैसा कब मिलता है? जब आप हर चीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो, राइट। एग्जाम्पल, इंडियंस आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द माइलेज ऑफ देयर व्हीकल्स। अगर किसी व्हीकल की माइलेज कम होती है तो हमें नहीं चलता है, अरे माइलेज कम हो गई, राइट, बिकॉज हम क्या देख रहे हैं, फ्यूल यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, माइलेज का मतलब। उसी तरह से आईटी में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। आपका मेमोरी हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, तो नेटवर्क हो गया। सेकेंड टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप यूटिलाइजेशन पे काम करो, कि वॉट एवर यू आर बिल्डिंग इज यूजिंग द मिनिमल यूटिलाइजेशन, इज डूइंग द मिनिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कम रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट आए।
और उसी अगर वो एक क्वालिटी आप बिल्ड कर लेते हो तो आपको पता चलेगा आपको नेटवर्क कैसे यूटिलाइज करना होता है, आपको रैम कैसे यूटिलाइज करनी होती है, आपको मेमोरी कैसे यूटिलाइज करनी होती है। तो ये प्रोसेस में यूजुअली गेन स्किल्स भी गेन हो जाते हैं, साथ एक्सपीरियंस भी हो जाता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म्स है। सबसे पहले बिल्ड करो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, देन बिल्ड द लॉजिक्स एंड द लास्ट इज द यूटिलाइजेशन। व्हाटएवर यू आर डूइंग, जैसे आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया लेकिन उसके लिए आपको 10 MB का रैम लगा और फिर नेक्स्ट टाइम आपने वही प्रॉब्लम 1 MB में सॉल्व कर दिया, तो आप एक आगे गए, अपने खुद के लेवल से आप आगे गए। क्यों? क्योंकि आपने यूटिलाइजेशन कंट्रोल कर लिया। एग्जाम्पल 10 लीटर फ्यूल में अगर यहाँ से बोरीवली पहुंचने जब 1 लीटर फ्यूल में पहुंच जाए तो व्हाट यू विल प्रेफर? ऑब्वियसली 1 लीटर, बिकॉज यूटिलाइजेशन कम हो गया। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। अगर आपका यूटिलाइजेशन आपने कंट्रोल कर लिया, बेस्ट यूटिलाइजेशन अचीव कर लिया, दैट्स इट, आप फ्लरिश करना शुरू कर दोगे। और यही एक क्वालिटी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सर, वुड यू लाइक टू गिव सम like best words or like thoughts to our viewers for IT, like taking IT as a great career? Take IT as a great career only if you want to have the best of your life. ठीक है? एलन मस्क या किसी भी बात कर लो, इंजीनियर, एलन मस्क को पूछा था व्हाट डू यू लव, तो ही सेड इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन, एंड आई रियली मीन दैट इज वर्ड्स आर रियली ट्रू, बिकॉज जैसे मैंने बोला 20 इयर्स बैक भी वो अपने मर्सिडीज के सेकेंड हैंड पार्ट से रिप्लेस करता था, तो वो बंदा गैराज में जाके नहीं मांगता था वो रिपेयर करने के लिए मैकेनिक से, उसे खुद वो इंजीनियरिंग आती थी, ही वाज गुड एट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और वो खुद ही वो पार्ट्स चेंज करता था, तो उसके लिए वो अफोर्डेबल था। उसी तरह से कल को सारे घर, सारी चीजें आईटी से एनेबल्ड होने वाली हैं। आपने देखा कि कल तक हमारे घरों में सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे। अब हर घर में आपको एक सीसीटीवी कैमरा डोर पे तो मिल ही जाएगा। सोचो कि आपको ये समझना है कि आपको काम में मजा आ रहा है तो आप घर का कैमरा और बेटर कंट्रोल करोगे, राइट? अगर नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली। तो ओनली पीस ऑफ लाइन इज इफ यू लव आईटी, डोंट इवन हेजिटेट वंस टू सेइंग इट टू द वर्ल्ड कि आई वांट टू परस्यू इनटू द आईटी। ओके, बिकॉज अक्सर लोग आपको बोलेंगे आईटी में क्या ही सैलरी मिलेगी, एमबीए कर ले, सेल्स कर ले, बैंक में जॉब लग जा। इन सबसे कहीं ज्यादा ऊपर है आईटी। आईटी में आपके पास पावर होती है, आप कुछ इन्वेंट कर लो, कुछ बना लो और रातों रात आपका इन्वेंशन पॉपुलर हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। आई गेस आईटी की वजह से ओला, उबेर, फिर जोमेटो, स्विगी, सब यहाँ पे कोई हार्डवर्क नहीं है, बट एक सॉफ्टवेयर अच्छा सा बना लिया। और ये हार्डवर्क जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगा हार्डवर्क नहीं है, आपके पास वो पेशेंस होनी चाहिए कि मैं जो बना रहा हूँ वो सही है। एंड ज्यादातर लोग आपके ऊपर स्टूल्स फेंकेंगे, तो क्या ही कर रहा है, क्यों बैठा है, क्या बना रहा है, किसकी जरूरत है, राइट? क्यों बना रहा है? ओवरनाइट सक्सेस। यू शुड हैव दैट ट्रस्ट एंड एम्पैथी ऑन योरसेल्फ कि मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा, मैं बनाऊंगा और कुछ अच्छा होगा। अगर आप वो ट्रस्ट के साथ नहीं आ रहे हो तो जाने दो। ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में भी आता है, बहुत जरूरी है। अगर आप एंटरप्रेन्योर की तरह खुद को देख रहे हो तो आपको अपने काम पे भरोसा होना चाहिए। दुनिया आपको भरोसा करे कि ना करे, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है। वही बात है। सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतनी नॉलेजेबल बातें हुई और सही में मुझे तो बहुत एनलाइटमेंट फील हुआ है और आई गेस व्यूअर्स को भी हुआ रहेगा। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much for asking me to come here and giving me this opportunity. See you soon again. Yeah, thank you so much.